हाँ भाई शुक्र डाउट बता पहले. Raise your hand. Raise your hand. I will unmute and then you can tell me your doubt. बताओ भाई डाउट्स. अरे नहीं आए जो नहीं आए तुम लोग डाउट्स बताओ भाई. आज कुछ मैं नया नहीं पढ़ाने वाला हूँ. Today I'll only address your doubts as I told in the group yesterday. Relative velocity कहाँ से आ गया बे? पागल है क्या? वेक्टर्स ऑफ कैलकुलस का डाउट पूछो ना. नहीं काइनेमेटिक्स नहीं. हाँ तो जितने सॉल्यूशन भेजा था उसके बाद डाउट पूछो. Raise your hand and I will ask you. ये कौन से सम मेरे भाई? हाँ वेक्टर्स जैसे. Only vectors. किसी को कोई डाउट नहीं है? एक्स कंपोनेंट ऑफ सेवरल वेक्टर्स. डाउट का मतलब होता है क्वेश्चन. मेरे को कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन बताओ ना कि ये क्वेश्चन नहीं आया. How do you find the x component? You just find the x component like you do for a vector. एक मिनट. कौन सा क्वेश्चन बोला? Question 9.
एक एक करके करते हैं, भैया रुक जाओ एक सेकंड रुको, पहले मैं ये कर लूं. So this is question 9, lecture 7. So it is given that is equal to 0. Now A1 can be written as R cosine pi by 3 I cap plus R sine pi by 3 j cap, where R is the magnitude, and we can write A2 as R cosine 2 pi by 3 I cap plus R sine 2 pi by 3 j cap. So on. Add them all up, you get summation A, which is equal to 0, which is equal to R cosine pi by 3 plus cosine 2 pi by 3 I cap plus something j cap. If this vector is 0, this means that this component must be equal to आया समझ में? आ गया क्वेश्चन 9 समझ में? उसने पूछा था उससे. अद्वैत समझ में आया? Okay, next is one question was to find components of vector A along this way. Shujot. ये अपने दिमाग में बैठा लो. To find component of vector A along B, का magnitude क्या होएगा? A dot B upon magnitude of B. और इसका डायरेक्शन क्या होएगा? A वेक्टर क्या होएगा? This is how you find the component of a vector along another. Remember that this is a number. This is a number. Okay. This quantity is a vector. ठीक है? ईश्वरजोत आया तेरे को समझ में? Good. Next question is lecture 2, question 5. Lecture 2. एक मिनट रुको भाई, मैं देखूं कहाँ है lecture 2. ऊपर जाना पड़ रहा है ना. lecture, हाँ ये हाँ अभी आ रहा है ना, धीरे धीरे सबका कर रहा हूँ. Lecture 2, question 5. Resultant of two vectors P and Q is R if Q is doubled, then the
New resultant vector is perpendicular to P, magnitude of R. So this is lecture 2, question 5. देखो भाई भाव्या, I'll do it with two methods. Method 1 is the algebraic method. So the algebraic method is lengthy, but you don't have to visualize anything. Just write down what is given. The resultant of two vectors P and Q is R. The resultant of two vectors P and Q is R. So R square must be equal to P square plus 2PQ into cos theta, where theta is the angle between P and Q, which I don't know. ये आया समझ में भाव्या? Please write yes or no. इसके बाद से they say that if Q is doubled, then the new resultant vector is perpendicular to P. Okay. So if Q is doubled, then the new resultant vector is perpendicular to P. So the angle between the resultant vector and P, when P and 2Q are added. Remember, now you are adding P and 2Q. So the angle between the two vectors remains the same. Angle between P and 2Q remains theta. 2Q करने से क्या हुआ मालूम है ना, याद है ना? 2Q करने से क्या हो रहा है? केवल Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड डबल हो जा रहा है, डायरेक्शन सेम रहती है. So tan of phi is equal to the other vector, okay, the other vector sin theta divided by this vector, जिसके साथ आप रिजल्टेंट का एंगल निकालना चाहते हो, प्लस द अदर वेक्टर इनटू कोसाइन थीटा. ठीक है, आई होप ये सबको याद है. ये हमने किया था जब हमने ए और बी वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाला था. उसके बाद से हमने ए और रिजल्टेंट के बीच में एंगल निकाला था, बी और रिजल्टेंट के बीच में एंगल निकाला था. Remember that tan phi is equal to other vector into sin theta divided by this vector plus the other vector into cosine. This they are telling me is 1 upon 0. ये समझ में आया भाव्या? Is this understood? Okay. Why is it 1 upon 0? Because phi is given as 90 degrees, tan phi is tan 90 degrees, tan 90 degrees is infinite. Infinite we represent as 1 upon 0. Basically what this means is that the denominator should be 0. So if the denominator is 0, this simply means that cosine theta, right, is equal to minus P by 2Q. Cosine theta is equal to minus P by 2Q. I can put the value of cosine theta here. I'll get P square plus Q square minus 2PQ. cosine theta की वैल्यू डाल दे रहा हूं मैं. हाँ,
हाँ मेरे को भी दिखाई दे रहा। हाँ मेरे को नहीं दिखाई दे रहा मैम। सो 2PQ into P/2Q, तो क्या होएगा कि 2Q कैंसिल हो जाएगा, बचा P स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। R² इज इक्वल टू व्हाट? R² इज इक्वल टू Q²। R इज इक्वल टू Q, मतलब कि रिजल्टेंट का वैल्यू Q के बराबर। आया समझ में भाव्य? आया? इज दिस अंडरस्टूड? आ गई भाव्या? हेलो हेलो भाव्या, गायब हो गई। समझ में आया भाव्या? नहीं समझ में आया? अच्छा, दोनों को ही उड़ा देना है क्या? ये तो अच्छा है। हाँ एक मिनट। हाँ हेलो सर। हाँ हाँ सर, समझ गया। हाँ समझा ये। मैं तेरा नाम भव्य भव्य की जगह भाव्या समझ, सॉरी। हाँ हाँ पहुंच रहे हैं 7 लेक्चर में पहुंच रहे हैं। फर्स्ट आई वांट टू क्लियर वट एवर इज। भव्य अपना ये रेज हैंड को लोअर हैंड कर। लेक्चर 2 क्वेश्चन 6। लेक्चर 2 क्वेश्चन 6 में क्या प्रॉब्लम है भाई रजत? लेक्चर 2 क्वेश्चन 6 में क्या है प्रॉब्लम? cos theta is equal to Lecture 2 Question 6. Cos theta is equal to what? Is equal to resultant square minus a square minus b square upon 2ab। और यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है ना। ए वेक्टर x प्लस वाई है, उसका मैग्नीट्यूड x प्लस वाई है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड x माइनस वाई, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर अपॉन 2x प्लस वाई इंटू एक्स। आया समझ में रजत? रजत अरे जल्दी लिखो भाई, यस और नो। अब आते हैं अपन, अब एक एक करके चल रहे हैं भैया। रजत का हो गया। एक मिनट मैं कर रहा हूँ। Lecture 2 Question 5 हो गया। नेक्स्ट इज Lecture 7 Question नंबर 11। Lecture 7 Question नंबर 11। Lecture 6 पे पहुंचा मैं।
Lecture 7. The force on a charged particle due to electric and magnetic fields is given by this equation. Supposing that in what direction should what with minimum be? अच्छा ठीक है. देखो भाई, हाँ सही, रुक जाओ, एक एक करके आ रहा है. So this is lecture 7, question number 11. So they are telling me that F is equal to some equation they have given me. QE plus QV cross B. E is along the x-axis and B is along the y-axis. Right? So I can write this as QE I cap, right, plus QV cross B. B किधर है भाई? B along the y-axis. B J cap. This should be equal to 0. If this is equal to 0, तो Q और Q तो cancel हो गए. मेरे पास आया जो equation वो आया E I cap is equal to minus V cross B J cap. Now they are asking us for the direction of minimum speed so that a positively charged particle experiences no force. No force की condition तो मैंने डाल दिया. Minimum speed की क्या condition होनी चाहिए? Remember that when I open the cross product, I am going to get VB sin theta, right? So V will be equal to E upon B sin theta. But we want the minimum speed. So for minimum speed, theta should be 90 degrees. Therefore, the question is really asking you that I cap is equal to minus of what cross J cap. ये मैं ब्रैकेट में कौन सी क्वांटिटी डालूं कि मेरा आंसर सही हो जाएगा? ये तो हमने किया है ना, वी हैव डन दिस, राइट? हाँ, तो यहाँ पे मेरे को डालना चाहिए k cap. So what is the direction of velocity? V minimum का मैग्नीट्यूड होएगा E by B और डायरेक्शन होएगा k cap. हाँ भाई, बताओ मेरे को. चैतल, शौनक, समझ में आया? ये आया समझ में ना? चैतल, गुड. शौनक को समझ में आ गई. ओके, हम एक एक करके आ रहे हैं. Lecture 4, question 4. Lecture 4, question 4. ये मुझसे पूछा है साइन. लेक्चर 4 पे आते हैं पहले. लेक्चर 4, क्वेश्चन 4. ये साइन किसमें तेरे को चाहिए? ये 4 वाला ट्यूटोरियल वाला या ये इन क्लास एग्जांपल आइस वाला? साइन, ओके. The magnitude of the sum of three vectors ABC representing the side of the cube of length A. हैं? सही? क्या हो गया भाई?
अगर क्यूब का साइड ए है तो जो वेक्टर होएगा वो एक डायगोनल होएगा क्यूब का, ये रहा वेक्टर। तो साईं मेरे को ये बताओ आप कि एक क्यूब का बॉडी डायगोनल का लेंथ क्या होता है अगर क्यूब का साइड ए है तो। साईं प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। A cube has a body diagonal and that is cube has a body diagonal of what length if the side is A? A cube। वॉल्यूम क्या होएगा क्यूब का साइन फिर? वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड ए? साइड क्यूब। दोनों नहीं हो सकता है ना साइन। आई मीन यू कांट हैव द वॉल्यूम एज ए क्यूब एंड द length of the diagonal as a cube, right? Will you agree with that? हाँ, तो please answer my question once again. What is the length of the body diagonal of a cube of side A? Sine 6a cube। 6a cube। ये 6 कहाँ से आया साइन? और ये 6 कैसे आया? Volume of cube is 6 into side cube। Volume of cube is 6a cube। नहीं बेटा, मेरे ख्याल से वॉल्यूम 6 क्यूब नहीं होता है जहां तक मुझे याद है। कैन यू जस्ट गूगल इट बच्चा? गूगल इट। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब? व्हाट इज द बॉडी डायगोनल ऑफ ए, व्हाट लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए क्यूब? एक बार गूगल करके देखो जरा क्या आता है। मेरे को याद नहीं आ रहा है बट इतना आ रहा है मेरे को कि 6 ए क्यूब नहीं होता है। 6 ए क्यूब तो नहीं होता है। अच्छा, ए क्यूब है। व्हाट इज ए क्यूब साइन? ए क्यूब क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अच्छा, अब लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल देखो भाई क्यूब का क्या है। गूगल इट। गूगल इट। हाँ, so that is the answer to the question. Okay, that is the answer to the question that you have asked. फिर उसके बाद से हम आ रहे हैं रजत। लेक्चर 2 क्वेश्चन 6। सब क्या पाल वाल के रखा था क्या रजत? मतलब हाँ, कि मैं जरा लेक्चर 1 से मैं डाउट पाल के रखता हूं मैं आखिरी मोमेंट तक। क्वेश्चन 6 तो बता दिया ना मैंने। ओह सॉरी, हाँ 11 ये बता दिया, सॉरी। लेक्चर 7 क्वेश्चन 14। नेक्स्ट इज लेक्चर 7 क्वेश्चन 14। दिशा। ओके, लेक्चर 7।
क्वेश्चन 14 यही है क्या? लेक्चर 6 है, लेक्चर 7 क्वेश्चन नंबर 14। हाँ चलो भाई, मेरा ये डायग्राम काम आ जाएगा। A B C D. So this is the y-axis. This is the x-axis. This is the z-axis. Points are A, B, C, D. A, B, C, D. अब मेरे को बताना है एंगल बिटवीन द एज अलोंग। ओ मैंने उल्टा लिख दिया, एक मिनट, मैंने एक्स वाई जेड गड़बड़ लिख दिया। हाँ हाँ वही, एक्स वाई जेड, एक्स वाई, हाँ हाँ। तो ये मेरे को आर्यन ने भी पूछा है और दिशा ने भी पूछा। हाँ भाई चलो, आर्यन, दिशा, angle between the edge along the z axis, that is the line AB, and the diagonal from the origin to the opposite corner, that is AD. Okay, so Disha and Aryan, please tell me what should I write if the side of the cube is 1, let's say, right? Side of the cube is 1. What should be the vector AB? क्या लिखना चाहिए मुझे? What should be the vector AB? What should be the vector AB? Disha and Aryan. What should be the vector AB? Ha, good. Yes. Disha, what should be the vector AB? नहीं, one vector नहीं हो सकता बच्चा. I mean you can't. I don't. Vector cannot be one. One is a number, na? Huh? Yeah. So what will be the vector AB? So you have told me the magnitude of the vector AB. Can you tell me also the direction of the vector AB? बताओ भाई दिशा, what is the direction of the vector AB? What is the direction of the vector AB? What is the direction of the vector AB? हाँ तो Z हम नहीं बोलते हैं ना. What we have a better name for it ना. I told you the names of the directions. What is the name of, what is the J cap is y axis Disha or z axis? हाँ,
जेड एक्सिस क्या होगा दिशा फिर? हमारा तो नाम ही इतना अच्छा है. You should understand from your name only. Yes, should be K cap. Yeah, should be K cap. And what is vector AD? Now, why Aryan and Disha? What is vector AD? What is vector AD? What is vector AD? Good. Yes, Aryan. Yes. Disha, बताओ भाई, what is vector AD? Vector AD. How will you go from A to D? क्या रास्ता अपनाएंगे A से D जाने के लिए? अगर हमें केवल एक्सिस के अलोंग या एक्सिस के पैरेलल चलना है तो पहले कहां से कहां जाएंगे, फिर कहां से कहां जाएंगे, फिर कहां से कहां जाएंगे? दिशा, व्हाट इज वेक्टर AD? How will we reach D if we only are going along the axis, parallel to the axis? तो रास्ता बताओ मेरे को, D तक कैसे जाएंगे? डायग्राम क्लियर है ना? आई होप द डायग्राम इज क्लियर. हेलो. वेरी नाइस. यस. एक मिनट होल्ड करो. Yeah, good. So this will be I cap plus j cap plus k cap. And how do we find the angle between two vectors? How do we find the angle between two vectors? Angle between two vectors is equal to how much? बताओ आर्यन. tan gamma. ये क्या है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं? नहीं, अभी नहीं यूज करेंगे ये. एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं? हाँ, गुड. यस. cos थीटा इज इक्वल टू, हाँ अब याद आ रहा है दिशा को. गुड. a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b. So what is a dot b here? A dot b will be 1 on magnitude of a 1, magnitude of b root 3. So cos theta is equal to 1 by root 3. This is the angle between, this is the angle between. ठीक है आर्यन, दिशा, बाकी पार्ट अपना अपने आप करो. सेकंड पार्ट ठीक है? आया समझ में? बिल्कुल सेम तरीके से करना है. आया समझ में या नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, हाँ है यार, तुम लोगों ने इतना लंबा उसमें चैट कर दिया है कि क्वेश्चन 14 हो गया. लेक्चर 3 क्वेश्चन 1. लेक्चर 3 क्वेश्चन 1. वापस जाने दो लेक्चर 3 पे. लेक्चर 3.
पहुंचा मैं 3 पे आ गया ना. लेक्चर 3. ये रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स मैग्नीट्यूड इसकी बात कर रही है ख्याति. Resultant of 3 vectors magnitude 1 to 3 whose directions are along sides of an equilateral triangle taken in the same order. यही बोल रही है ख्याति. हाँ चलो भाई. ये कई लोगों ने मुझसे डाउट पूछा है, राइट, एंड आई हैव replied by giving this diagram. Please follow my steps very carefully. So they tell us that कल वेक्टर्स का टेस्ट है शौनक, और तू जो है अब कैलकुलस का डाउट पूछेगा, अभी वेक्टर्स का पूछोगे. So they tell us that we have 3 vectors of magnitude 1, 2, 3 which are acting along or which are directed along the 3 sides of an equilateral triangle taken in that order. So the first vector is having a magnitude of 1. The second vector, yes, yaad hai na baat. Second vector is having a magnitude of 2. And the third vector is having a magnitude of 3. ये क्वेश्चन मैंने तब डिस्कस किया था जब हम पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन पढ़ रहे थे. 3 वेक्टर को ऐड करने के लिए आई एम अप्लाइंग द पॉलीगन लॉ. व्हाट इज द पॉलीगन लॉ? Draw the first vector, then from the head of the first vector you draw the second vector, from the head of the second vector you draw the third vector, right, and so on. And to find the resultant, you draw a vector from the tail of the first vector to the head of the last vector. So the blue arrow is what we have to find. Length of the blue arrow is what we have to find. The direction of the blue arrow is what we have to find. We already know that this angle is 60 degrees. Therefore, this angle must be, कितना है ख्याति angle? कितना है ये angle? 120 degrees. And if I were to drop a perpendicular from here to here, right, then the individual angles inside would be 60 degrees, 60 degrees, right? Now, please, Khyati, tell me the length of the yellow line. जो exposed yellow line है, उसका क्या length है? 1. Very nice. If the length of this line is 1, then please tell me the length of this portion. Please tell me the length of this portion. ये जो मैंने x लिखा हुआ है. What is the value of x? 1. Very good. Yes. So what basically we are trying to find is that we have an isosceles triangle of side 1, right? We are trying to find this side. और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद है? मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था. फॉर्मूला क्या था? मतलब एक छोटा सा डेरिवेशन था. मैंने बोला था बहुत यूज आएगा. अगर ये r है, ये r है और ये थीटा है, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? याद है कैसे किया था? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा. फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल है. हाँ ख्याति याद है? ख्याति, what will be the value of the third side? It will be, ख्याति, it will be, look at this right angle triangle. What is the value of hypotenuse, ख्याति? The blue right angle triangle that I have drawn, R, yes. And what is the angle? What is the yellow angle? No. In this blue right angle triangle, what is the yellow angle? In this blue right angle triangle, theta by 2, exactly, yes. So this side of the
this side of the right angle triangle then becomes r sine theta by 2, and therefore this whole side becomes 2r sine theta by 2. अभी आ गया समझ में ख्याति क्या करना है? Good. Next question. Next question. कहाँ गया next question? ये तो फिर से बोलना ही पड़ेगा ख्याति. Lecture 3, question 1. Lecture 5, question 3. Zoheb. Lecture 5. ये जोहेब किस में पूछ रहा है तू? मतलब ये आइस वाले में है या ट्यूटोरियल वाले में है? मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी किसकी बात कर रहा है? आइस की बात कर रहा है. 5. A truck traveling 20 meters per second northwest change in velocity. हाँ, दोनों सेम है, दोनों सेम, दोनों सेम है. So this is lecture 5, question. अब रुक जा, मेरे को जो है स्पैम मत करो, पहले एक क्वेश्चन को आंसर करने दो मुझे. Question 5. Truck traveling 20 meters per second north turns west. Find the change in velocity. Zoheb, please tell me the initial velocity of the truck in I cap J cap form. Zoheb, please tell me the initial velocity of the truck in I cap J cap form. अब गायब हो गया तू, अभी तक स्पैम कर रहा था, अब गायब हो गया. Initial velocity of the truck in I cap J cap form. अबे इनिशियल वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूं. इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ. So this should be plus 20 j cap. And what is the final velocity? Final velocity is minus 20 I cap. Right? Should be followed by meters per second. What is the change in velocity? क्या मतलब होता है ज़ोहैब change का? What do you think change means? Subtract. Yes. Final from initial, right? हो गया. VF minus VI. और जो तूने सेकंड क्वेश्चन पूछा है वो भी ऐसे ही होएगा. आया समझ में ये ज़ोहैब? हेलो. हाँ, तो अब ये जो भी वेक्टर आएगा, नाउ यू आर केपेबल ऑफ फाइंडिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड यू आर केपेबल ऑफ फाइंडिंग इट्स डायरेक्शन. Lecture 5, tutorial 2, question 21. Lecture 5, tutorial 2, question 21. हाँ, अब रुक जा ज़ोहैब. एक मिनट रुकिए, मैं 21 वाला कर लूं फिर तेरा वाला करता हूँ. Lecture 5, question 21. देखो भाई हार्दिक,
ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, राइट। ब्रैकेट ओपन करना आता है ना हार्दिक, जैसे अलजेब्रा में करते थे। ये हो जाएगा ए क्रॉस ए माइनस बी प्लस ए क्रॉस, सॉरी, प्लस बी क्रॉस ए माइनस, ये याद है हार्दिक? यहाँ पे फिर से ब्रैकेट खोल दो। So this will be equal to A cross A minus A cross B plus B cross A minus B cross B. B cross B क्या होएगा हार्दिक? B cross B क्या होएगा हार्दिक? B cross B क्या होएगा? ये भी गायब हो गया। तुम लोग गायब क्यों जा रहे हो हार्दिक? B क्रॉस B क्या होएगा? जीरो। A क्रॉस A विल बी जीरो। और B क्रॉस A को कैसे लिख सकते हैं? माइनस A क्रॉस B लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा -2A क्रॉस। हाँ भाई, अब जल्दी से बता ये क्या नाम है इसका? क्या कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा था लेक्चर 5 से? और कौन सा क्वेश्चन था? एक मिनट रुक। ओ, मैंने कुछ और दबा दिया। फिर से कर हार्दिक, फिर से हैंड रेस कर। हाँ बोल। सर एक जगह पढ़ रहा था, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, तो उसमें सर ऐसा लिखा था, मतलब डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन था कि a प्लस बी a क्रॉस बी के परपेंडिकुलर कैसे है सर? अरे ए प्लस बी ए क्रॉस बी के तो परपेंडिकुलर होएगा। हेलो, होएगा तो कैसे? कैसे? क्या मतलब है यार? ए क्रॉस बी ए के परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता? ए यस क्रॉस सर, बी ए के परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता? यस सर होता है। बी के परपेंडिकुलर बी होता है के कि भी नहीं? होता है। यस सर। बी के परपेंडिकुलर होता है ना? यस सर। तो ए प्लस बी करेंगे तो जो भी वेक्टर आएगा वो तो यस सर। ए और बी के प्लेन में आएगा ना। ए प्लस बी करेंगे तो ए और जो वेक्टर आएगा वो ए और बी के प्लेन में आएगा ना। ये ए है, ये बी है, और ये वाला वेक्टर ए क्रॉस बी है। ए प्लस बी किधर है? ए प्लस बी ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है या नहीं है? बोल। बोलो भाई। चल नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? एक मिनट रुक जाओ विश्वजीत। चारों भी एक मिनट रुक जाओ, पहले मैंने देखना था हो गया।
और मैं कोई क्वेश्चन मिस कर रहा हूँ? फिर से लिखो भाई, पूरा एकदम भर गया है। लेक्चर 5। हाँ बस 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 रुक जाओ, नोबडी टाइप एनीथिंग। लेक्चर 5 क्वेश्चन नंबर 8। लेक्चर 5 number 8. Unit vector makes an angle 45 degrees with the vector and angles 60 degrees with the vector. अबे यूनिट वेक्टर इन द xy प्लेन है ना? यूनिट वेक्टर इन द xy प्लेन क्या होता है? यूनिट वेक्टर, हाँ तो मैं तो वही में हूँ, मैं हूँ क्या? अच्छा, अबे बता तो दिया कैसे करना है, जैसे अभी किया वैसे आई कैप जे कैप में लिख और उसका सब्ट्रैक्शन कर। आई कैप जे कैप में लिख और सब्ट्रैक्ट कर, जैसे अभी वेलोसिटी वाला किया था वैसे ही होएगा वो। लेक्चर 6 आया समझ में जोएब जो मैंने बोला? अरे तो अब उसमें जो वेलोसिटी वाला था उसमें आई कैप जे कैप सीधा था, इसमें टेढ़े वेक्टर है ना, तो इसमें समथिंग कॉस थीटा आई कैप प्लस समथिंग साइन थीटा जे कैप आएगा ना। लेक्चर 6 लेक्चर 6 क्वेश्चन नंबर 13 14 क्या है भाई? लेक्चर 6 क्वेश्चन नंबर 13 14 10। ओफो, क्या हो रहा है? लेक्चर 6 क्वेश्चन नंबर 13। ओए, क्वेश्चन नंबर 13 अभी किया ना मैंने। ट्राइंगल की जगह स्क्वायर लेना है, फिर उसके बाद से 4 वेक्टर हैं along the direction of a square. P, 2P, 3P, 4P, और ये निकालना है, सॉरी बता दिया, ये निकालना है। ऑफ ऑफ ये निकालना है। आ जाएगा या मैं करूं? आ जाएगा या मैं करूं? बोलो भाई, हाँ या ना? हाउ टू स्टार्ट? अरे क्या तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में बेस कितना है? ये नीला बेस कितना है? नीला बेस कितना है पहले मेरे को बताओ। 3P तो नहीं है भाई अभिजीत। यहां से यहां की लंबाई 3P, यहां से यहां की लंबाई P, तो यहां से यहां का लेंथ क्या होएगा? 2P। और ये लेंथ क्या होएगा? वर्टिकल जो मैंने ब्लू बनाया, ये क्या लेंथ होएगा? वर्टिकल जो मैंने बनाया है, आप बताओ 225 होएगा कि 130? कौन से क्वाड्रेंट में है ये?
कौन से क्वाड्रेंट में है वेक्टर आर? ये 2p हो। कौन से क्वाड्रेंट में है वेक्टर आर? सेकेंड क्वाड्रेंट में। एंगल कहां से कहां तक वेरी करता है? क्या हो गया तुम लोगों को सुबह सुबह? फिर उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 14 14 P plus Q is equal to R, P minus Q is equal to S. Prove that. अरे दादा क्या हो गया? P plus Q is equal to R implies R square is equal to P square plus Q square plus 2PQ cos theta. P minus Q is equal to S implies R square is equal to S square is equal to P square plus Q square minus 2PQ cos theta. ऐड कर दो भाई, दोनों को आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कौन सा नहीं हो रहा? 10 The resultant of two vectors A and B is at right angles to A and its magnitude is half of B. Find the area between, नहीं है वो angle between है अबिन, area between नहीं है, angle between है, and it will be done in exactly the same way as I had shown before. But पिछली बार मैंने शायद डायग्राम ग्राफिकल मेथड नहीं दिखाया ना मैंने। Question 10 graphical method. Please everybody read the question. I will show this using the graphical method. मैंने शायद पिछले वाले क्वेश्चन में बताना भूल गया था। Question number 10. Lecture 6, tutorial 1, question number 10. The resultant of two vectors A and B is at right angles to A. So if this is vector A, then this is the resultant. It is at 90 degrees to A. This means that this is the diagonal of the parallelogram that I would have drawn. This means that vector B must be here. ये आया सबको समझ में? ये आ रहा है जो मैंने अभी किया? The resultant of the vector A and B is perpendicular to vector A. तो मैंने वेक्टर A बनाया और मैंने एक उसके परपेंडिकुलर वेक्टर बनाया। ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर बनाया है ये उस पैरेललोग्राम का डायगोनल है जो वेक्टर A और B बनाएंगे। Therefore, now I can construct the vector B. This angle is given to me as 90 degrees. Now the question says, and its magnitude is half of B. Find the angle between A and B. Okay, so the magnitude of the red vector is half of B. Right? So, अबे तो एरिया लिखा, मिसप्रिंट होता है कि नहीं पार्थ भाई? माफ कर दे मेरे को, मैंने गलत टाइप कर दिया, गलती से हो गया भाई, माफ कर दे मेरे को। कौन गायब हुआ? आर्यन, माफ किया कि नहीं? बी किया ना माफ तूने? जय हो। And then this is B by 2. So what will be the angle between the two vectors? Basically, we have to find this angle, right? So if this is B by 2, this is 90 degrees, this is I don't really need this, right? तो ये B है और ये B by 2 है, तो ये एंगल कितना आएगा?
This angle will so the angle bit हाँ भाई रजत ऐसा है कि मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैं क्या बताऊं अब। नहीं ऐसा तो नहीं तू मुझसे पूछने लग जाएगा कि ये 60 का मतलब क्या होता है। हाँ 60 में यूनिट पे क्या लिखा है, कौन सा डिजिट है, और टेंस में कौन सा डिजिट है। मतलब इतनी बेसिक नॉलेज लेके चलो भाई। समझ गया ना। अब और कौन सा क्वेश्चन है। हो गया ना, 6 का हो गया ना। हाँ 5 के क्वेश्चन, लेक्चर 5 के क्वेश्चन 6 का ऑप्शन रॉन्ग है। हाँ वेस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, west. If I say that I'm measuring this angle theta, theta is west of north. If I say that I'm measuring this angle phi, phi is south of east. आया समझ में? तो भाई समझ में आया कि नहीं? ओके ग्रेट। और क्या डाउट है? लेक्चर 7 क्वेश्चन 10। लेक्चर 7 ट्यूटोरियल की बात कर रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 10। Particle moves in a given straight line at a speed v at a certain time. OP cross V is independent। अरे बकवास क्वेश्चन है यार। देखो पार्टिकल मूव्स विद अ सर्टेन कांस्टेंट वेलोसिटी v, तो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, कभी यहाँ होएगा, कभी यहाँ होएगा, कभी यहाँ होएगा। अब ये हो गया ओपी, इस केस में ये हो गया ओपी, इस केस में ये हो गया ओपी, ये हो गया ओपी, ये हो गया ओपी। आ रहा है समझ में जो मैं बोल रहा हूँ? वेलोसिटी पार्टिकल की v है और पार्टिकल का पोजीशन p है। p तो चेंज होते जा रहा है, तो ये बोलते हैं कि वेक्टर OP क्रॉस v इज इंडिपेंडेंट ऑफ p। ये हमें प्रूव करना है। मैग्नीट्यूड निकाल दो सीधा भाई, हमें तो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में मालूम है ना। मैग्नीट्यूड क्या होगा? OP मैग्नीट्यूड ऑफ v साइन थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ v तो कांस्टेंट है, तो मेरे पास बचा OP साइन थीटा। कैन यू टेल मी वेयर इज OP साइन थीटा? वेयर इज थीटा इन फैक्ट? इस केस में तो ये थीटा हो गया, इस केस में ये थीटा हो गया।
इस केस में तो ये थीटा हो गया, इस केस में ये थीटा हो गया। थीटा तो वेरी करते जा रहा है, लेकिन ओपी साइन थीटा क्या है? ओपी साइन थीटा क्या है? ये हो गया ना थीटा। ओपी साइन थीटा तो ये साइड हो गया। इन दिस केस ये हो गया, इन दिस केस ये हो गया, इस केस ये हो गया। Is OP sin theta varying with time? Is OP sin theta varying with position? OP sin theta is not varying. Magnitude of V is not varying. So it's not changing. Sorry. This is constant. This is constant. Therefore, OP cross V is constant. और बताओ कौन सा डाउट है? लेक्चर 6 क्वेश्चन 4। लेक्चर 6 में कौन सा क्या बोल रहा है? लेक्चर 6 ट्यूटोरियल। हाँ वो तो समझ में आया, तो क्वेश्चन 4 बोल रहा है, ट्यूटोरियल बोल। अरे बार बार 4 लिखेगा तो मुझे थोड़ा समझ में आएगा। हाँ, लेक्चर 6 क्वेश्चन 4। Deduce the condition for the